السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اليوم يوم الثلث 15 ذی القعدہ 1443 ہجری. آج منگل کا دن ہے، جون کی 14 تاریخ 2022. انشاءاللہ اب ہم اپنی قرآن کلاس شروع کرتے ہیں. آج ہم سورہ اعراف آیت نمبر 71 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال قد وقع علیکم، اس نے کہا البتہ واقع ہو گیا تم پر، من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے، رجس و غضب، عذاب اور غضب. اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اسماء، ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو کہ تم نے خود رکھ لیا ہے، انتم و آباؤکم، تم اور تمہارے باپ دادا، ما نزل اللہ بہا، نہیں نازل کیا اس کے اوپر اللہ نے، من سلطان، کوئی دلیل. واتبعوا، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں گا. یعنی اس سے پہلے جو کچھ آیتوں کے اندر جو سو حضرت ہود علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے، قوم عاد کی طرف جو ان کو بھیجا گیا تھا، انہی کا واقعہ اس میں چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا یقیناً تمہارے اوپر جو سو تمہارے رب کے طرف سے عذاب اور کیا کہتے ہیں کہ غضب ثابت ہو چکا ہے، اور کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. تو جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ کیا ہم تمہاری بات کو سن کر اور ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں، کیا ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان تمام کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ دادا جو سو جن کی عبادت کیا کرتے تھے. اور اگر ایسی ہی بات ہے تو ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، اور اس عذاب کو لے آؤ جس کا تم جس کے بارے میں تم ہم سے ڈراتے ہو. یعنی قوم اتنی ڈھٹائی کے ساتھ، یعنی جب ان کے رسول جو سو ان کو بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، تو ان لوگ جو سو خلاف ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. تو پتہ کیا چلا، جیسے کہ آج کل ہمارے مسلمانوں کی بیماری بھی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی دلیل کیا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کس طریقے پہ چلتے تھے اور ہمارے باپ دادا کیا کیا کرتے تھے. تو اسی طریقے سے ان کے قوم کے لوگوں نے بھی کہا کہ جب حالانکہ رسول جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس کو جو سو کتاب دیا ہے، جس کو حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو تبلیغ کرو اور ان کی بات ماننا لوگوں کے اوپر ضروری اور لازم ہے، تو وقت کا رسول جو سو ان کو دعوت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے، ان کو حکم دے رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو. تو وہ سامنے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم تمہاری بات کو مان لیں اور ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور وہ سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کیا کرتے تھے. مطلب کیا ہے، دیکھیں ذرا ان کے قوم کی حالت کیا ہے کہ وقت کے نبی کی اہمیت سے زیادہ اپنے باپ دادا کا طور طریقے کی اہمیت ہے، اور وقت کا نبی اور وقت کا رسول جو اللہ کا کلام سنا رہا ہے، ان کو اللہ کا حکم سنا رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات کو مان لے کر ہم جو سو کہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں. یعنی اس طریقے سے پھر اچھا جب کہا، جھگڑا کیا آپس میں جو سو یہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ہم تو تمہاری بات کو، یعنی مطلب کیا ہے کہ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں. اور رہی بات کہ جو تم ہم کو ڈراتے ہو کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے اور میری بات نہیں مانو گے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے دوسروں کی بھی عبادت کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا، اور اس طریقے سے جو وعیدوں سے تم ڈراتے ہو، اگر تم واقع سچے ہو تو اس کو لے آ کے دکھاؤ. اگر تم واقع سچے ہو، یعنی چیلنج کر دیا رسول کو، کہہ دیا کہ اس عذاب کو اور اسی مصیبت اور اس پکڑ کو ہم پر لا کے دکھاؤ اگر تم جو سو واقع سچوں میں سے. تو یعنی یہ تو ایکسٹریم ہو گیا. ایک تو وقت کے رسول کی بات نہیں ماننا، اللہ کا کلام جو نازل ہو رہا ہے، اللہ کے احکامات جو نازل ہو رہے ہیں اس کو نہیں ماننا، اس کے مقابلے میں اپنے بڑے باپ داداؤں کے بات کو اور ان کے طریقے کو جو سو زیادہ افضلیت سمجھنا. اس کے علاوہ اور حد سے آگے بڑھ کر کہ ہم تو نہیں بدلنے والے ہیں،
जो तुम वादा करते हो, जो हमको डराते हो, उस अजाब को लाकर तो दिखाओ। तो अब ये तो एक्सट्रीम हो गया है, इसके बाद तो क्या है कि दोनों में से एक ही बात होगा, या तो अल्लाह ताला यकीनन उनके ऊपर अजाब को लेकर आए, या नहीं तो फिर जो सो वो अपनी मान बात में ये हो जाते। तो बहरहाल जब वो मामला इतना एक्सट्रीम हो गया, तो फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि यकीनन तुम्हारे ऊपर जो सो तुम्हारे रब के तरफ से अजाब और जो सो गजब, उसका गजब साबित हो गया। और फिर आखिरी में उन्होंने यही कहा कि ए जाहिलो, ए अक्लमंदो लोगो, तुम क्या है, यानी किस जिसमें मेरे से झगड़ा करते हो, वो तो सिर्फ नाम ही नाम है। यानी जिन माबूद और जिन चीजों की तुम इबादत करते हो अल्लाह के साथ, अल्लाह को छोड़कर, वो कुछ नहीं है सिवाय ऐसे कुछ नामों के जो कि खुद तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिया है। यानी बेवजह के, जिसकी कोई असल नहीं है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई सनद और कोई दलील नहीं नाजिल किया है, वो सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के रखे हुए तरीके हैं, नामा है, और वो कुछ नहीं है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई सनद भी नाजिल नहीं किया। हाँ, अगर अल्लाह ने कुछ नाजिल किया होता तो फिर तो तुम कह सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला तो उसके बारे में कोई सनद नाजिल नहीं किया, कोई हुक्म नाजिल नहीं किया है। ये सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का करा धरा है। तो इतना कहकर उन्होंने कहा कि इसके बाद भी जो सो बहरहाल तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। क्यों? कि उन लोगों ने पहले कहा था ना कि उस अजाब को ला के दिखाओ जिसका तुमको जिससे हमको डराते हो। तो अब वो हूद अलैहिस्सलाम ने कह दिया, अच्छा देखें, हूद अलैहिस्सलाम भी अपनी कितनी आजिज़ी और इनकिसारी कर रहे हैं कि बस तुम इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं अब अजाब ला के दिखाता हूँ, अब तुम इंतजार करो और देखो मैं एक लम्हे में और 2 लम्हे में इंतजार अजाब ला के दिखाता हूँ। क्यों? कि रसूल तो रसूल है, लेकिन उनके इख्तियार में भी नहीं है कि किसी कौम के ऊपर अजाब ले आए। सिर्फ वो अल्लाह के सामने दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से मदद चाह सकते हैं। अब इसके बाद अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। चाहे तो अल्लाह ताला फौरन अजाब नाजिल कर दे, चाहे तो कुछ दिनों के बाद नाजिल करे, चाहे तो ना नाजिल करे। तो ये अल्लाह की तरफ से है। इसीलिए उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी, बता दिया कि जो तुम जिनको तुम पुकारते हो, जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के साथ, वो सिर्फ अस्मा है, नाम है। यानी प्लूरल, नाम का जो सो प्लूरल जो होते हैं उसको अस्मा कहा जाता है। इस्म जो सिंगुलर है, अस्मा प्लूरल है। तो बहरहाल वो सिर्फ नाम ही नाम है जो कि तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख छोड़ा है, जिसके ऊपर अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की। अब ऐसा ही मामला है तो मैं भी इंतजार करता हूँ, तुम भी इंतजार करो, हम इंतजार करते रहते हैं कि अल्लाह का फैसला आने का। तो अब यहाँ पर जो नाम ही नाम है, इसके बारे में वो क्या है, वो सारे के सारे, जैसे कि हम कुरान की तफसीर में इसके वजाहत है इसकी भी, और खासतौर पे कौम नूह के अंदर जो सबसे पहले दुनिया में शिर्क आया था, वो कौम नूह में आया था। और वो कैसे आया था? उनके जो कौम नूह के जो नेक और बुजुर्ग किस्म के लोग होते थे, जब वो दुनिया से चले जाते थे, तो उसके बाद शैतान उनके पास आके उनको जो सो, बल्कि उनके जो अगली नस्ल थी उनको सामने जो सो शैतान ने आके कहा कि देखो तुम्हारे पहले बाप दादा जो थे वो फला फला जो थे वो तो बहुत बुजुर्ग थे, बहुत नेक सिफत लोग थे। तो कहा कि हाँ, तो कहा कि एक काम करो कि अगर तुमको जो सो अल्लाह की इबादत करनी है तो तुम क्या करना कि उनके कुछ तस्वीरें वगैरह बनाकर जो सो अपने घरों में या अपनी इबादत गाहों में लटका देना। क्योंकि जब कभी भी तुम उनकी तस्वीरों को देखोगे तो तुमको जो सो उनको याद आएंगे, और जब वो याद आएंगे तो तुम अल्लाह की इबादत ज्यादा इखलास के साथ कर पाओगे। तो इस तरीके से उनकी जो औलाद थी उनको शैतान ने इस तरीके से वरगलाया, तो उन लोगों ने उनकी बात को, शैतान की बात को मान लिया, और उसी तरीके से उन लोगों ने तस्वीरें वगैरह बना के लटकाना शुरू किया। अब वो एक नस्ल चली गई, फिर दूसरी नस्ल आई, तीसरी नस्ल आई, तो शैतान बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जो सो उसके बाद जो सो दूसरी नस्ल को कहा कि ये तस्वीरें बना के लगाने के बजाय ये है कि उसके तुम बुत या कोई मुजस्समे बना के लगा लो घरों, अपने घरों में या इबादत गाहों में। तो उन लोगों ने वैसे ही किया। फिर उसके बाद और एक नस्ल चली गई, वो नस्ल गई, फिर एक नस्ल आई, तो उनको कहा कि भाई तुम्हारे बाप दादा तो इनकी इबादत किया करते थे, जो अल्लाह के सामने इबादतें करने के जो अक़साम है इबादत के, जैसे रुकू, सजदा, तवाफ वगैरह, वो सब इनके सामने भी किया करते थे, लिहाजा तुम भी इनके साथ किया रहो। तो इस तरीके से शैतान ने आहिस्ता आहिस्ता जो सो लोगों को जो सो, जो हालांकि तौहीद पे थे, नूह अलैहिस्सलाम के कौम तक सारे के सारे लोग तौहीद पर थे, और उनकी कौम के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता जो है शैतान ने उनके अंदर बुत परस्ती को शुरू करवाया। अच्छा, जिन बुतों की इबादत करते थे वो कौन थे? वो जैसे कि आजकल हमको कहा जाता है शिर्क है, तो यही कहते हैं कि भाई शिर्क वही होता है जो काफिर लोग जो सो अपने मंदिरों में उसमें जो सो कोई पत्थर वगैरह की मूर्ति रखते हैं, कोई बुत रखते हैं, वही होता है। और वो उससे हमारा क्या लेना देना, मुसलमानों का क्या लेना देना, इस तरीके का जो सो पावर किया जाता है। हालांकि जब देखा जाए कुरान की और हदीसों में इसकी जो तफसील है कौम नूह के अंदर किस तरीके से जो सो बुत परस्ती आई, उसके अंदर बाज़ाब्ता तफसीलात में मौजूद है कि वो पूरे के पूरे जिनकी लोग इबादत करते थे वो पहले के बुजुर्गान दीन थे, वो जो सो नेक अल्लाह के औलिया थे,
कौम नूह के जो नेक लोग थे जो पहले गुजर चुके, उनके लोगों ने मुजस्समे पहले तस्वीरें बनाया, फिर मुजस्समे बनाया, फिर उसके बाद में जो सो उनकी इबादत करना शुरू कर दिए। तो इस तरीके से जो शिर्क शुरू हुआ दुनिया में, नेक लोगों के साथ मोहब्बत का दावा करते हुए, उनकी मोहब्बत में गुलू करते हुए, गुलू करके फिर उनके तस्वीरें बनाना, फिर उनके मुजस्समे बनाना, फिर मुजस्समों यानी उनके बुतें बनाना, बुत बनाकर जो सो उनके सामने इबादत, उनके कुछ अक़साम उनके सामने करना, इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता जो सो शिर्क उनकी जो सो कौम में राइज हुआ, जो कि बुखारी वगैरह के तफसीलात में पूरे के पूरे मौजूद है, बल्कि उनके नाम वगैरह भी मौजूद है। और फिर हुआ क्या, उसके बाद जब कौम नूह और ये सब चले गए, लंबा अरसा गुजरा, उसके बाद जो सो जब खाने काबा में जो सो इस्लाम आने से पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैसत से पहले जो 360 बुत रखे गए थे ना, उनकी शुरुआत भी कैसे हुई वो भी तफसीलात, बहरहाल लंबी तफसीलात है। वो एक नाम है इंसान का, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। वो इंसान ने पहली मर्तबा अरबों के अंदर, मक्के के अंदर जो सो बुतों को लाके नस्ब किया उसने। और वो बुतें को लाके कैसे नस्ब किया, शैतान ने उसको रहनुमाई किया कि जो आजकल जिद्दा वगैरह जो है, जहाँ पर साहिल है, वहां पर बहरहाल वो जो कौम नूह के बुत जो सो वहां पर कहीं पर किसी जगह में दफन थे, तो शैतान ने उसको रहनुमाई की और बहरहाल वो बुतों को वहां से निकाल कर लेकर आकर उसने जो सो काबे के अंदर नस्ब कर दिया। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जमा पूरे जो सो काबा में 360 बुत जमा हो गए, और मक्के के लोग जो सो उनकी इबादत किया करते थे, और उसका भी जो सो उनके भी लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबुल और ये और सारे के सारे उनके नाम वगैरह भी है। और बाज़ अफ़्ता उनके बारे में है कि वो पूरे के पूरे पहले कौमों के नेक और बुजुर्ग लोग, वली अल्लाह जिसको आज के ज़माने में हम कहते हैं, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, वो थे। उनके बुत बनाकर लोगों ने रखा था, यहाँ तक कि जो सो काबे के अंदर 360 बुत जमा हो गए, और उसी के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी बुत था। इस तरीके से बहुत सारे नेक और औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन जो पहले कौमों के गुजर चुके थे, उनके लोगों ने बुत बना के रखे थे। और उनको करते क्या थे, हर दिन एक बुत को बाहर लाते काबे के अंदर से, और उसको रख के उसकी इबादत करते। और जहाँ पर अल्लाह की इबादत करते, जहाँ पर काबे का तवाफ करते, जहाँ पर तवाफ करते हुए हज और उम्रा करते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, जो आज मुसलमान जो हज और उम्रा करते अपने जो तलबिया पढ़ता है, वही तलबिया वो भी पढ़ते और अल्लाह ही की इबादत करते, अल्लाह के लिए हज और उम्रा करते। लेकिन साथ में उस तलबिये में आगे जाकर कहते हैं, ए अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय ऐसे शरीक के जिसका तू भी, जिनका तू मालिक है, यानी जो उनके इख्तियार में जो कुछ है, उनका ही तू ही उनका एक मालिक है। इस तरीके के अल्फाज वो कहा करते थे। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे में, मक्के में बैठे होते काबे के पास, और ये मुशरिकीन मक्का वगैरह जब तवाफ वगैरह करते और इस तरीके से तलबिया पढ़ते, तो वहां पर जब आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि खफ खफ, बैठ, रुक जाओ, यहाँ तक तो तुम्हारा तलबिया बहुत अच्छा था, ये आगे का जो कलिमा तुम कहते हो, ये कलिमा शिरकिया का कलिमा है, यानी अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं सिवाय ऐसे शरीक के जिसके इख्तियार में जो कुछ है, उसी का तू भी उसी का उसका भी तू ही मालिक है। जिस तरीके से आज का मुसलमान, अक्सरियत जो मुसलमानों की है, वो भी इसी तरीके के शिर्क में मुब्तला है। और जब उनको रोका जाता, जब उनको समझाया जाता, तो कहते हैं क्या, जैसे कौम हूद के लोगों ने जो हूद अलैहिस्सलाम को जैसे कहा था कि क्या हम तुम्हारी बात को सुनकर एक अल्लाह की इबादत करें और उन तमाम को छोड़ दें जिनकी हमारे बाप दादा इबादत किया करते थे। तो वही कलिमा आज के लोग भी कहते हैं, जब उनको कहा जाता कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, ये सब कुछ जो तुमने बना रखा है, किसी को ख्वाजा बना दिया, किसी को ख्वाजा गरीब नवाज कह दिया, किसी को ख्वाजा बंदा नवाज कह दिया, किसी को गौसे आजम कह दिया, किसी को जो सो दाता गंज कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यहाँ तक कह दिया, जो कुछ ले लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले पे वहदत के सिवा क्या है। इस तरीके के जो कलिमात कह दिया। फिर उसी तरीके से खवालियों में कह दिया, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, तेरे दर से खाली ना जाऊंगा, और पता नहीं क्या कुछ। तो इस तरीके के जो बात कहते हैं, जो अकीदे रखते हैं, उनसे भी जाके आप पूछिए, तो उनकी बात भी यही होती है कि क्या हम तुम्हारी बात को सुनकर हम उन तमाम को छोड़ दें जिसको हमारे बाप दादा जो काम किया करते थे, जो तौर तरीके करते थे, हम उन सबको छोड़ दें? ये कैसे मुमकिन है? ये तो हमारे बुजुर्गान दीन है, ये औलिया अल्लाह है। आखिर जो इनके इख्तियार
इख्तियार में है, वो सब कुछ भी अल्लाह ने दे रखा है। जैसे कि मुशरिकीन मक्का का अकीदा था, एग्जैक्टली वही अकीदा आज मुसलमानों की एक कसीर तादाद का है। वो भी यही कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि इनके पास कोई ये अल्लाह की वो है, ये भी अल्लाह से लेके देते हैं, यानी हम इन तक अपनी दुआओं को पहुंचाते हैं, ये अल्लाह से लेकर हमको देते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो सो इनके इख्तियार में जो कुछ है, आखिर ये बुजुर्गान दीन है, औलिया अल्लाह है, अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है, तो ये सब कुछ भी अल्लाह का दिया हुआ है। हम इनको पुकारते, हम इनको खुदा नहीं समझते, हम इनको अल्लाह नहीं समझते, लेकिन आखिर इनके पास भी तो कुछ इख्तियारात है। तो इस तरीके की बातें कहना, इस तरीके की सोच रखना, इस तरीके के काम करना, एग्जैक्टली वही अकीदा है, वही सोच है, वही काम है जो पहले जो सो कौम नूह में आया, फिर उसके बाद कौम आद में आया, उसके बाद उसी तरीके से यहाँ तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जब मुशरिकीन मक्का थे, उनके अंदर भी यही कुछ अकीदे थे। बल्कि आज का जो मुसलमान है, उसके अकीदे जितने बिगड़ चुके हैं, उससे कहीं ज्यादा अच्छे अकीदे तो मुशरिकीन मक्का के थे, जो कि कुरान गवाही देता है। मैं और आपकी बात की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूछिए तो सही इनसे कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, तो ये यही कहेंगे कि अल्लाह ही बरसाता है। इनसे पूछिए तो सही कि तुमको रिस्क कौन देता है, आसमानों से रिस्क कौन देता है, तो ये यही कहेंगे कि अल्लाह ही देता है। फिर अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं, इनसे पूछो तो सही फिर ये कहाँ बहक रहे हैं, फिर इनसे पूछो तो सही ये क्यों अंधे हो रहे हैं। फिर इनसे मतलब क्या है कि जब तुम मानते हो कि अल्लाह ही तुम्हारी मुसीबतों को दूर करता है, अल्लाह ही तुमको जो तुम्हारी मदद करता है, तुमको रिस्क देता है, तो फिर तुम अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत क्यों करते हो, दूसरों के सामने इबादत के अक़साम को क्यों करते हो। तो जब उनसे पूछा जाता तो फिर उसका जवाब खुद कुरान में भी अल्लाह ताला ने उनकी कौल को नकल कर दिया। जब उनसे पूछा जाता था कि भाई तुम अल्लाह के सिवा या दूसरों की क्यों इबादत करते हो, तो वो क्या कहते थे, मा नाबुदुहुम, हम नहीं इबादत करते इनकी, इल्ला सिवा ये के लियुक़र्रिबूना, कि वो हमको थोड़ा करीब कर दें, इलल्लाहि, अल्लाह के, युक़र्रिबूना अल्लाहि ज़ुल्फ़ा, अल्लाह के थोड़ा करीब कर दें। यानी जब उनसे पूछा जाता, उनसे सवाल किया जाता कि तुम जब अल्लाह को मानते हो, अल्लाह को मानते हो कि अल्लाह ही पैदा करता है, अल्लाह ही रिस्क देता है, सब कुछ अल्लाह करता है, तो फिर इबादत में अल्लाह को खालिस क्यों नहीं करते, इबादत सिर्फ एक अल्लाह की क्यों नहीं करते। तो वो कहते थे कि हम इन जिन 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 की इबादतें करते, अच्छा मा नाबुदुहुम, हम नहीं इबादत करते, मतलब क्या है, पूरा सही करेंगे तो उसका माने क्या है, हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये हमको अल्लाह के थोड़ा करीब कर दे। कोई ये ना कहे कि मा नाबुदुहुम, हम उनकी इबादत नहीं करते तो वो इनकार कर रहे, नहीं, यानी नेगेटिव करके इल्ला जो है ना, तो उसके माने क्या होते हैं, हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमको अल्लाह के थोड़ा करीब कर दे। तो पता क्या चला, एक तो ये कि वो मानते थे कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हकीकत में इबादत की कुछ अक़साम है। फिर वो क्या करते थे, हम ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, यानी इस गरज और इस मकसद के लिए कर रहे हैं ताकि हमको जो सो ये जो लोग हैं, ये हमको अल्लाह के थोड़ा करीब कर दे। जैसे कि आज का मुसलमान भी एग्जैक्टली वही कुछ कहता है, भाई हम ये बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के सामने जो चढ़ावे चढ़ाते हैं, नजरें नियाजें करते हैं, तो इसमें हमारा मकसद ये है कि हम गुनाहगार इंसान है, अल्लाह हमारी नहीं सुनता, अल्लाह ताला के करीब अल्लाह तक हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, तो ये हमारे जरिए है, ये हमारा वास्ता है, हम इनके जरिए से अल्लाह तक पहुंचते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं आजकल के मुसलमान, अक्सरियत मैं कह रहा हूँ, अल्लाह जिसको महफूज रखा है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने महफूज रखा है, लेकिन अक्सरियत जो है इसी तरीके के 19-20 का फर्क होगा, इसी तरीके की सोच, इसी तरीके की बात करते हैं जो कि मुशरिकीन मक्का कहा करते थे, जो तो कुरान में अल्लाह ताला ने उसको जिक्र कर दिया। सूरह ज़ुमर आयत नंबर गालिबन 3 है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहरहाल उसमें अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ कह दिया, वो कहते थे मा नाबुदुहुम इल्ला युक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। जब हम इनसे उनसे पूछा जाता कि तुम इनकी इबादतें क्यों करते हो, तो वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ इस वजह से, इस गरज, इस मकसद के लिए करते हैं ताकि वो हमको थोड़ा अल्लाह के करीब कर दे। वही अकीदा आज मुसलमानों का भी है, अक्सरियत का वही सोच हमारी मुसलमानों की भी है। अच्छा, मुशरिकीन मक्का और जो सो उन लोग करते क्या थे, फिर वो जिसको इबादत कहा गया है वो क्या क्या काम करते थे, वो भी तफसीलात जो सो कुरान और हदीस में उसकी मौजूद है। कुछ आयतें हम पढ़ चुके हैं पहले, जो हम पढ़ चुके थे वो क्या था, वो रिस्क और वो खेतियां और वो जानवर जो अल्लाह ताला ने उनको दे रखा था, उसमें से क्या करते थे, वो एक हिस्सा मखसूस करते थे, एक हिस्सा निकालते थे और ये कहते कि ये अल्लाह के लिए है, यानी अल्लाह के लिए सदका खैरात के लिए ये हिस्सा है। फिर एक हिस्सा निकालते और कहते कि ये हमारे माबूदों के लिए है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हालत ये होती
کہ जो अल्लाह के लिए जो हिस्सा निकाले, वो अगर उनके माबूदों के हिस्से में कमी हो जाती तो अल्लाह के हिस्से से निकाल कर उनके माबूदों के लिए उसको खर्च कर लेते। लेकिन इसके बरअक्स अगर जो उनके माबूदों के लिए जो हिस्सा निकाल के रखा है और अल्लाह के लिए सदका खैरात करने में अगर कोई कमी होती तो इस हिस्से में से निकाल कर वहां पर हरगिज़ नहीं देते। मतलब क्या है कि जो माबूदों के लिए जो हिस्सा निकाल के रखा है उसकी अहमियत उनके लिए अल्लाह के हिस्से से ज्यादा होती थी। जबकि मामला हकीकत क्या है कि सारा का सारा वो खेती और वो अनाज और वो जो कुछ जानवर वगैरह जो कुछ है वो सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का था। एक अल्लाह ने दिया था, उसमें से वो कुछ हिस्सा अल्लाह के खातिर निकालते, कुछ अपने बंदों अपने माबूदों के लिए निकालते, और जो माबूदों के लिए निकालते उसकी इतनी अहमियत थी कि अल्लाह के हिस्से में जरूरत पड़ती तो उसको नहीं पहुंचाते और अल्लाह के हिस्से को अपने माबूदों के हिस्से में डाल लेते थे, मिला लेते थे। आज भी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ वाकया है नहीं हमारे मुसलमानों में। खास तौर पे वो लोग जो कारोबारी लोग होते हैं और अपने घरों में अपने दुकानों में जो सो एक गल्ला वगैरह डब्बा रखते हैं, रोजाना जो सो एक फिक्स 50 रुपए 100 रुपए जो भी है जितना उनसे बन पड़ता है उस गल्ले में डालते रहते हैं। अगर कोई पूछे भाई ये क्यों कर रहे हैं, अरे भाई ये तो हमारी न्याज है, फला 11वीं की न्याज के लिए, ये पता नहीं फला न्याज के लिए, ये फला के नजर के लिए है, तो साल भर उसको जमा करेंगे या महीना महीना, कुछ लोग तो सालाना करेंगे, कुछ लोग ज्यादा बिगड़े हुए जो है हर महीने की 11 तारीख को 11वीं करते हैं, तो महीना भर जमा करेंगे और 11 तारीख के दिन बोले 11वीं है, ये महीनावारी 11वीं। कोई जो सो सालाना 11वीं करता है, कोई 12वीं कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फला दरगाह की नजर कर रहा है, कोई फला उनकी नियाज कर रहा है, फला की नियाज कर रहा है। तो ये सारे के सारे वही काम जो मुशरिकीन मक्का किया करते थे आज का मुसलमान भी कर रहा है। उसी तरीके से मुशरिकीन मक्का क्या करते थे, उनकी जो सो उनके खातिर उनको खुश करने के लिए उनके सामने सजदा करना या उनका तवाफ करना, उनके सामने रुकू करना, जो इबादत की जो अकसाम है वो भी किया करते थे। आज का मुसलमान भी देखें, कब्रों के सामने जाकर बुजुर्गान दीन के कब्रों के पास जाकर कोई उसका तवाफ कर रहा है, कोई उसके सामने सजदा कर रहा है, कोई वहां पर जाकर धागा बांध रहा है, कोई वहां पर जाकर जो सो कोई और चीज कर रहा है और उम्मीदें लगा रहे हैं, वहां पर जाकर जो सो मन्नतें मान रहे हैं और वहां पर जाकर नजर कर रहे हैं, नियाज कर रहे हैं, जो कि इबादतें हैं, इबादत के अकसाम है। और बाज़ सजदा करते हैं, बाज़ सजदा करते हैं लोग, और इसी तरीके से कब्र की तवाफ करते हैं, जो कि सारे के सारे अल्लाह की इबादत के लिए खास काम थे। वो कामों में से बहुत सारे काम जो सो लोग उन बुजुर्गान दीन के खबरों के पास जाके करते हैं, उन बुजुर्गान दीन से जो सो दुआएं मांगते हैं कि बाबा हमारा फला काम कर दीजिए या अल्लाह से दुआ कीजिए, और इस तरीके से। जबकि हकीकत क्या है कि जो कोई बुजुर्ग, बड़े से बड़ा बुजुर्ग कोई क्यों क्यों ना हो, जो दुनिया से चला जाता, जो वफात पा जाता, कुरान का फैसला है, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन लोगों को नहीं सुनवा सकते जो मर चुके हैं। उसी तरीके से दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनको नहीं सुनवा सकते जो खबरों में मदफून है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान के बारे में अल्लाह ताला कह दे और कुरान में कह दे, तो जब नबी नहीं सुनवा सकते तो दुनिया की कोई और मखलूक, कोई और इंसान सुना सकता है? नामुमकिन है। तो जब ये अकीदा हमारा कुरान के मुताबिक अगर अलाइन हो जाए, सही तौर पर हमारे जहनों में बैठ जाए कि जो कोई खबरों में है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे बड़े से बड़ा वली हो, बुजुर्ग हो, जो कोई हो, क्योंकि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यही तो कहा, खास नहीं कहा कि फला तो बच्चे हुए हैं, फला को तो सुना सकते, फला बाउलिया अल्लाह है उनको सुना सकते, कोई शहीद है तो उनको सुना सकते, हरगिज़ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कह रहे हैं कि आप भी नहीं सुना सकते। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुनवा सकते तो दुनिया की कोई और मखलूक कैसे सुना सकती है? तो यहाँ पर जो जब कह दिया गया कि नहीं सुना सकते, और अगर हमारा अकीदा कुरान के मुताबिक अगर ये साफ हो जाए कि जो कोई दुनिया से चला जाता है, जो कब्र में मदफून हो जाता है, वो हरगिज़ इंसानों की, जो दुनिया वाले हैं उनकी बात को नहीं सुन सकता। जब वो अकीदा सही हो जाए तो फिर जब नहीं सुनता तो फिर जाकर उसके खबर के पास चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, अड्लाएंगे ही नहीं, उसके सामने जो सो आजिज़ी और इनकिसारी नहीं करेंगे। तो अगर बुनियादी तौर पर हमारा अकीदा सही हो जाए तो फिर शिर्क के बहुत सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। फिर दूसरी बात, जब हमको पता चल जाए कि अक़साम शिर्क जो है, इबादत की जो शक्लें जो है वो सिर्फ अल्लाह के खातिर की जा सकती है, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं की जा सकती, तो फिर इंसान जो सो उन इबादतों के शक्लों को भी अल्लाह के सिवा किसी और के सामने नहीं करेगा। तो बहरहाल यहाँ पर जो सो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कह दिया, डरा दिया और कह दिया कि अब तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला में से हूँ। फ़अनजयनाहु, फिर बस हमने उसे नजात दे दिया, वल्लज़ीना माअहु, और वो जो उनके साथ थे, बिरहमतिम मिन्ना, हमारी रहमत से, हमारे तरफ से रहमत के साथ, वक़त्तअना दाबिरा, और हमने काट दिया जड़ों को, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, वमा कानू, और वो नहीं थे मोमिनीन, ईमान लाने वाले।
देखें जब उन लोगों ने, उनके कौम के लोगों ने जो सो हद कर दिया, तो हूद अलैहिस्सलाम ने भी उनके कौम को जो सो वाज़ो नसीहत कर दिया। उसके बाद कहा कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। फिर उसके बाद अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जो सो हूद अलैहिस्सलाम को भी और उनके साथ जो थे, यानी उन पर जो चंद लोग जो ईमान लाए थे, उन लोगों को तो हमने बचा लिया अपनी रहमत के जरिए से। और हमने जो सो काफिरों की, वो लोग जो हमारे आयतों को झुटलाते थे, उनकी जड़ों को ही काट दिया हमने, यानी उनको पूरे के पूरे तहस नहस कर दिया। पूरी की पूरी कौम को अल्लाह ने हलाक कर दिया। और आखिर में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो थे ही नहीं मोमिन ईमान लाने वाले, यानी जो कौम को अल्लाह ने हलाक किया, तो उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि उनको और मौका दिया जाता तो ईमान ले आते, क्योंकि एक मौका पूरे के पूरा जितना मौका देना चाहिए था दे दिया गया था। उसके बाद भी जब वो ईमान नहीं लाए, तो अब अल्लाह की तरफ से जो उनके पर अजाब आया और उनकी पूरी की पूरी कौम को हलाक कर दिया गया, सिवाय हूद अलैहिस्सलाम के। और उनके साथ जितने भी लोग ईमान वाले थे, उनको तो अल्लाह ताला ने बचा लिया, बाकी सबको जो सो हलाक को बर्बाद कर दिया। व इला समूदा, और समूद की तरफ अखाहुम सालिहन, उनके भाई सालेह को। खाला, उसने कहा, या कौम इबुदुल्लाह, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, नहीं है तुम्हारे लिए कोई और इलाह उसके अलावा। खद जाअतकुम बय्यिनातुन, तहकीक तुम्हारे पास आ चुके निशानियां, वाज़े दलाइल, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से। हाज़िही नाक़तुल्लाही, ये है अल्लाह की ऊंटनी। लकुम आयतुन, ये है तुम्हारे लिए आयत, एक निशानी के तौर पर। फजरूहा, बस उसे छोड़ दो। ताकुलु फिल अर्जिल्लाही, वो खाती फिरे अल्लाह के जमीन से। वला तमस्सुहा, और ना उसको छूना, बिसू बिसू इन, कोई बुरे इरादे से। फयाखुजकुम, फिर तुम्हें पकड़ लेगा अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। अब यहाँ पर जो सो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है, सॉरी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। यानी हमने समूद के तरफ हजरत सालेह, जो उनके भाई, यहाँ पर देखें अल्लाह ताला जो सो क्या कहा, वह इला समूदा, समूद के तरफ, यानी समूद क्या है, कौम है। अखाहुम सालेहन, उनके भाई सालेह को। मतलब क्या है, जो रसूल को अल्लाह ताला उनके कौम में भेजते हैं, उनको उनका भाई से ताबीर कर रहे हैं। मतलब क्या है, जैसे कि पहले भी हमने पढ़ चुके थे कि हर रसूल ने कहा कि क्या तुम्हें ताज्जुब होता है कि अल्लाह ताला ने अपने जिक्र को, अपने जो किताब को एक तुम्ही में से एक इंसान के ऊपर भेजा है। तो ये सबसे साबित क्या होता है, जितने भी रसूलों को अल्लाह ताला ने भेजा है, वो सब कुछ इंसान ही थे, उस कौम के एक फर्द ही हुआ करते थे। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबों में से थे, कुरैश में से थे, और आप भी इंसान थे। और कुरान खुद उसकी दलील देता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप कह दीजिए कि मैं भी तुम ही जैसा एक बशर हूँ। फर्क क्या है, यूहा इलैया, वही की जाती है मेरी तरफ। तो ये बहुत बड़ा अहम अकीदा है, जिसको आज मुसलमानों में से कसीर तादाद जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान मानने से इनकार करती है, और कहते हैं कि नूर मिन नूरुल्लाह कह देते हैं, जो कि बहुत बड़ा खता है, बहुत बड़ी गुनाह है। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने समूद के तरफ जो सो उनके भाई सालेह को भेजा, यानी सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा। और उन्होंने जो सो कहा, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह ही की इबादत करना, और तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई और इलाह और कोई माबूद नहीं है। फिर आगे कहा, यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से निशानियां आ चुकी है, दलाइल आ चुके हैं, और ये है अल्लाह की ऊंटनी, जो कि तुम्हारे लिए एक निशानी के तौर पर पेश की गई है। और उसको तुम छोड़ दो, यानी उसको आजाद छोड़ दो, उस जमीन में, अल्लाह की जमीन में जहां से चाहे वो चरते रहे, खाती पीती रहे, खाते रहे वो, उसको कोई हाथ, उसको खबरदार, उसको कोई बुरे इरादे से तुम उसको हाथ भी नहीं लगाना। और अगर तुम ऐसा करोगे, यानी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें दर्दनाक अजाब आकर छू लेगा। देखें अब यहाँ पर क्या है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जो सो उनकी कौम ने जो सो मुतालिबा किया था कि ठीक है, जब तुम दावा करते हो कि तुम अल्लाह के रसूल हो, तो हमको एक निशानी ला के दिखाओ। और वो हो सकता है वो पहाड़ी इलाका था होगा, तो उन लोगों ने सामने पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा कि इस पहाड़ की चट्टान जो है, उसमें से जो सो एक ऊंटनी जाहिर हो जाए। यानी कैसे उटपटांग जो सो मुतालिबा है, देखिए, यानी सामने पहाड़ है, बिल्कुल चटियल पहाड़ है, तो कह दिया कि हमारे आंखों के सामने से हम देखें, क्योंकि पहाड़ के अंदर से ऊंट निकलना तो नामुमकिन बात है। तो बहरहाल इस तरीके का नामुमकिन जो चीज थी, उसको मुतालिबा कर लिया और कह दिया कि जो सो हमारे सामने जब तुम कहते हो कि अल्लाह के रसूल हो, तो एक काम करो, हमको एक मोजिजा और एक निशानी के तौर पर जो सो इस पहाड़ के अंदर से एक ऊंटनी जाहिर हो जाए, जो हम अपनी आंखों से देख ले, तो हम फिर तुम्हारे पर मानेंगे। तो
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको डराया भी, देखो अगर उसके बाद अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके बाद उन्होंने बहरहाल अल्लाह से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने मोजिजातन उनकी आंखों के सामने उस पहाड़ में से एक ऊंटनी को जाहिर कर दिया, जो वहां से पहाड़ से निकली और इनके सामने आ गई। तो यही वाकया यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह की ऊंटनी है जो अल्लाह ताला ने एक निशानी के तौर पर तुम्हारे पास भेजा है, और याद उसको बिल्कुल आजाद छोड़ दो, जहां से चाहे वो खाती रहे, अल्लाह के जमीन में से जो रिस्क है उसको रोकना टोकना नहीं। बल्कि दूसरी जगह पर उसके पानी पीने के बारे में भी कह दिया गया, जो पानी पीने के दिन है तुम्हारे लिए एक दिन होगा, उसके लिए एक दिन होगा, उसको तुम तकलीफ नहीं देना, परेशान नहीं करना, और अगर तुम उसको किसी तरीके से नुकसान करने की कोशिश करोगे तो याद रखो कि अल्लाह की तरफ से जो सो अल्लाह की तरफ से तुमको दर्दनाक अजाब जो सो आके छू लेगा। अब उतना कहने के बाद, इतना डराने के बावजूद भी कौम का हाल क्या था, देखें, बस कुरु और याद करो, इस जालकुम खुलफा, जबकि तुम्हें बना दिया था खलीफा जाननशीन मिन बादी आदिन, आद यानी कौम आद के बाद तुमको अल्लाह ताला ने ये खलीफा बनाया, जाननशीन बना दिया था। वो बव्वाकुम फिल अर्जी, और तुम्हें ठिकाना दिया जमीन में, तत्तखिजुना फी सुहूलिहा, तुम बना लेते हो उसकी नरम जमीन में, खुसूरन महलात, व तख व तनहितूना बिल वतन हितून अलजिबाला, और तुम जो सो तराशते हो पहाड़ों में बुयूतन अपने घरों को, फस्कुरु आला अल्लाही, बस तुम याद करो अल्लाह की नेमतों को, वला तासो फिल अर्जी, और ना फिरो जमीन में मुफसिदीन, फसाद बर्पा करते हुए। देखिए अब जो सो कौम सालेह अलैहिस्सलाम ने और जो सो अपनी कौम को नसीहत किया, कहा कि तुम ये सो याद करो, यानी याद करो उस अल्लाह की नेमत को जो कि अल्लाह ताला ने तुमको खलीफा बनाया जमीन में, जान नशीन बनाया कौम आद के बाद। जैसे हमने इससे पहले आयतों में पढ़ा ना कि कौम आद को अल्लाह ताला ने जब हलाक कर दिया, तो उसके बाद आने वाली कौम ये थी कौम समूद जो है। तो अल्लाह सालेह अलैहिस्सलाम को यही कहा कि अल्लाह की नेमत को याद करो कि अल्लाह ताला ने तुमको जो सो आद कौम आद के बाद तुमको जमीन का जान नशीन बनाया और तुमको जमीन में ठिकाना दिया, और यहाँ तक कि तुमको अल्लाह ताला ने वो सलाहियतें दिया कि जमीन जो नरम जमीन होती है उसमें तुम जो सो बड़े बड़े महलात बना लेते हो, और जो सख्त पहाड़ होते हो उनको तराश कर तुम जो सो घर बना लेते हो। और ये कि अल्लाह की नेमतों को तुम याद करो, और खबरदार डरते रहो कि जमीन में जो सो फसाद फैलाते हुए मत फिरो, यानी अल्लाह की बात को मानो, अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। क़ाल अल मलऊ, कहने लगे सरदारान, अल्लज़ीना इस्तकबरू, जिन्होंने तकब्बुर किया था, मिन कौमिही, उसके कौम में से, लिल्लज़ीना इस्तज़इफू, उन लोगों से जो कि कमजोर थे, लिमन आमना मिनहुम, जो कि ईमान ला चुके थे उनकी कौम में से, अतालमूना, क्या तुम जानते हो, अन्ना सालिहन, कि यकीनन सालेह, मुरसलन, रसूल बनाए भेजे गए हैं, मिन रब्बिही, उसके रब की तरफ से, खालू, उन्होंने कहा, इन्ना बिमा उरसिला बिही, बेशक उसके साथ जिसके साथ उन्हें भेजा गया है, मोमिनून, हम ईमान ले आते हैं। देखें अब उनके कौम के सरदार जो किस्म के थे ना, बड़े बड़े चौधरी और बड़े किस्म के जो रईस किस्म के जो लोग थे, उन लोगों ने जिन्होंने तकब्बुर किया, और जिसके पास मालो दौलत होती है वही तकब्बुर भी करता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो कौम सालेह के जो सो कौम ये इनके जिसको क्या कहते हैं, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने जो सो उनमें से जो तकब्बुर बड़े चौधरी किस्म के मालदार किस्म के जो तकब्बुर करने वाले लोग थे, उन लोगों ने उन कमजोर लोगों से जो कि ईमान ला चुके थे, यानी गरीब किस्म के जो लोग थे जो ईमान ला चुके थे, उनसे पूछ रहे हैं, दर हकीकत में उनका मजाक करते हुए कहना चाहते थे कि क्या तुम यकीन करते हो कि यकीनन सालेह को जो सो अल्लाह ताला ने मबूस किया है, उनको रसूल बनाया है। तो इस तरीके से उन लोग जो सो उनके तरफ मजाक करते हुए उनसे सवाल करते थे। तो उन लोगों ने आगे से क्या जवाब दिया, सॉरी मैं काम हो गया जी। तो उन लोगों ने कहा कि यकीनन हम तो जो जिस चीज को देकर ये जो सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया है, हम उसके ऊपर ईमान ले आते हैं। मतलब क्या है, बजाय इसके कि सालेह अलैहिस्सलाम के रसूल होने का तस्दीक करें, उन्होंने कहा कि रसूल होने की तस्दीक से ज्यादा तो हम तो उस बात को भी मानते हैं जो सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो किताब और जो कुछ अहकामात नाजिल किया है, हम उसके ऊपर ईमान ले आते हैं। तो देखिए आगे से उन लोगों ने फिर क्या कहा, क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू, कहने लगे वो लोग जिन्होंने तकब्बुर किया था, इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम
बिही, बेशक हम उस चीज का जिसके ऊपर तुम ईमान ले आते हो काफिरून, हम कुफ्र करने वाले हैं, हम उनका इनकार करने वाले। देखें तकब्बुर करने वाले यही होता है ना कि हक का इनकार करते हैं। तो यहाँ पर अगरचे के जो कमजोर लोग थे जो ईमान ला चुके थे, उन लोगों ने कहा कि भाई सालेह अलैहिस्सलाम के रसूल होने की बात तो तुम छोड़ो, हम तो उस बात पर भी उस यकीन रखते हैं, उस बात पर हम ईमान लाते हैं जो कुछ उन्होंने अल्लाह की तरफ से उनको दिया गया है, यानी जो कुछ किताब और जो कुछ रिसालत दी गई है हम उसके ऊपर ईमान लाते हैं। तो सामने से तकब्बुर करने वालों ने कहा कि जिस चीज के ऊपर तुम ईमान लाते हो, यानी जो किताब और जो कुछ अहकाम जो सालेह अलैहिस्सलाम को दिया गया जिसके ऊपर तुम ईमान लाते हो, हम तो उसका इनकार करते हैं। यानी ऐलान करते हुए उन लोगों ने कहा हम उसके काफिर है, उसके मुनकिर है, हम उसको जो है उसका इनकार करते हैं। अब फाखरू नाकता, और उन लोगों ने जो सो पहुंचे काट दिया ऊंटनी की, वह आतो अन अम्र रब्बिहिम, और उन्होंने सरकशी की उनके रब के हुक्म की, वह खालू, और उन्होंने कहा या साले हो, ए साले आतीना, ले आ हम पर, बिमा तईदुना, जिससे तू हमें डराता है, इन कुंता मिनल मुरसलीन, अगर तू यकीनन रसूलों में से। देखें हद की भी इंतहा, देखें कितने वो सरकशी करने लगे। एक तो कहा कि उस चीज की हम इनकार करते हैं जिसके ऊपर तुम ईमान लाते हो, फिर उसके बाद जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उन लोगों ने जो सो उस ऊंटनी को उसके कोंचे काट दिया। दूसरी जगह पर उसकी तफसीलात है, वक्त खत्म हो रहा है। तो बहरहाल उन लोगों ने जो सो ऊंटनी की को उसको कत्ल कर दिया उसको, और जो सो उन लोगों ने अपने रब की नाफरमानी की और साले अलैहिस्सलाम से कहा कि ए साले, हम पर वो अजाब को तो ला के दिखा जिससे हमको तू डराता है, अगर तू यकीनन रसूलों में से है तो उस अजाब को हम पर ला कर दिखा। और जो सो फिर अल्लाह ताला करें फाखज़तहुमुर रजफतु, बस उन्हें पकड़ लिया एक ज़लज़ले ने, फ़अस्बहु, बस वो हो गए फी दारिहिम जासिमीन, वो अपने घरों के अंदर जो सो औंधे पड़े रह गए। यानी जब अल्लाह का अजाब आया तो ज़लज़ले के तौर पर आया, फिर उनको जो सो सारे के सारे अपने घरों के अंदर बिल्कुल औंधे पड़े हुए, यानी खत्म हो गए, सारे के सारों को अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। वक्त खत्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।